ٹھاٹھے مارتے سمندر کے لہروں میں گرا ایک چھوٹا سا جزیرہ، جہاں تمام مسلم دنیا کو ختم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ لیکن قدرت بھی اپنے منصوبے بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ اسے کسی اور جگہ تلاش تھی، اپنے ماں باپ، اپنی شناخت، اپنے مذہب کی۔ اس نے آنکھ کھولی تو وہ بھیڑیوں کے غول میں پھنسا ہوا تھا جو اسے کچا چبا جانا چاہتے تھے۔ لیکن قدرت اسے ایک اہم مقصد کے لیے چن چکی تھی، محبت، نفرت، سنسنی سے بھرپور لہو رنگ داستان۔ محافظ۔ اس کا زخم جلد بھر جائے گا، یہ اچھی خبر ہے، لیکن جب تم لوگ اپنے مجرموں کو سزا نہیں دیتے تو پھر ان کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ ہم انہیں ہمیشہ کے لیے قید کر دیتے ہیں، سرجی نے اطمینان سے جواب دیا۔ میں نے بے ساختہ کہکا لگایا، وہ چھینک آیا تھا۔ سزا اور کسے کہتے ہیں؟ اس نے جلدی سے صفائی پیش کی۔ لیکن ہم اپنے مجرموں کو غیر انسانی سزا نہیں دیتے، قید میں بھی ان کو تمام آسائشیں مہیا کی جاتی ہیں، حتیٰ کہ وادی کی کوئی عورت ان سے شادی کرنا چاہے تو انہیں اس کی بھی اجازت دے دی جاتی ہے۔ پھر قید کرنے کا فائدہ؟ وہ اس وادی سے باہر نہیں جا سکتا۔ تہواروں کے دنوں میں انہیں باہر گھومنے پھرنے کی آزادی بھی دی جاتی ہے۔ کیا ہر قسم کے مجرم کو یہی سزا دی جاتی ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ہر مجرم کو نہیں، عام قسم کے معاملات چھوٹی سزا پر نمٹا دیے جاتے ہیں، صرف خاص معاملات میں آقا قید کی سزا دے سکتے ہیں۔ ہم اسپتال سے باہر آئے، سورج تقریباً مغربی سمت میں پہاڑوں کے عقب میں چھپ چکا تھا اور وادی پر تاریکی مسلط ہو رہی تھی۔ ہم مہمان خانے آ گئے جہاں میمن انتظار کر رہی تھی۔ سرجی مجھے اس کے حوالے کر کے چلا گیا۔ جناب آپ کھانا کب کھائیں گے؟ میمن نے پہلا سوال کیا۔ جیسے ہی ملے گا۔ میں نے پیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ 4 گھنٹے کی گھڑ سواری کے بعد آدمی کو کیسی خوفناک بھوک لگتی ہے یہ آج پتہ چلا۔ آپ اپنے کمرے میں چلے، میں کھانا لے کر آتی ہوں، اس نے ادب سے کہا۔ آپ کچھ خاص چیز پسند کریں گے؟ ابھی روسٹ اور مقامی ترکاری بنی ہے، جو بھی بنا ہے سب لے آؤ، میں نے اندر جاتے ہوئے کہا۔ بس تاخیر نہ کرنا۔ اندر تیز روشنی والی شمعیں روشن کر دی گئی تھیں۔ سائمن کا ہاتھ کٹ گیا تھا۔ مجھے پہلے ہی اس بات کا خدشہ تھا۔ اس کے زخم کی حالت خراب تھی، غالباً حیوانی دانتوں کی وجہ سے زخم زیادہ ہی تیزی سے خراب ہوا تھا۔ اس نے اپنی بدنیتی کا پھل پا لیا تھا اور اب اس کی باقی ماندہ عمر اس وادی کے قید خانے میں گزرے گی۔ غالباً اس کے حساب نے یہ نہیں بتایا تھا۔ میں نے سوچا، پھر مجھے جمشید علی کا خیال آیا۔ اگر حسن علی کسی آبادی تک پہنچ گیا تھا تو اس واقعے کی اطلاع جمشید علی کو مل چکی ہوگی، اور شاید کاجل کو بھی۔ اس بار جمشید علی کا غصہ لازمی تھا۔ سر اندر آ جاؤں؟ میمن نے دروازے پر دستک دے کر پوچھا۔ آ جاؤ، میں نے اجازت دی تو وہ ٹرے اٹھائے اندر آئی اور میز پر رکھ دی۔ کعبیں ڈھکی تھیں، میں ہاتھ دھو کر آیا، وہ کھانا نکال رہی تھی۔ اشتہا انگیز خوشبو نے مجھے سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ خاصی دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ ایسے ہی بیٹھی ہے۔ سوری، مجھے خیال نہیں رہا، آؤ تم بھی آؤ، وہ جیسے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے بولی۔ آپ کھائیں، میں آپ کی خادمہ ہوں، آپ کے ساتھ نہیں کھا سکتی ہوں، یہ میرے فرائض کے خلاف ہے۔ میں نے سر ہلایا۔ کیا تم رات کو بھی یہیں ہوتی ہو؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں آپ کو کھانا کھلا کر چلی جاؤں گی۔ میں نے غور کیا، بستی خاصی دور ہے، یہاں سے تم کیسے جاؤ گی؟ آپ فکر نہ کریں سر، میں چلی جاؤں گی، روز جاتی ہوں، ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے۔ اکیلی عورت کہیں محفوظ نہیں ہوتی ہے، لیکن اس وادی میں ہوتی ہے۔ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو وہ بچ نہیں سکتا۔ اگر لوگوں کی نگاہوں سے بچ بھی جاتا ہے تب بھی جناب سرمانی کی نگاہوں سے نہیں چھپ سکتا۔ آپ کو کچھ اور درکار ہے؟ میں چلی جاؤں گی تو دوسرا خادم آپ کا خیال رکھے گا، اسے گھنٹی بجا کر طلب کر سکتے ہیں۔ کھانا کھا کر میں نے کافی کی فرمائش کی۔ وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، اس نے آگاہ کیا۔ میرے پاس ہے، کیا تمہیں بنانا آتی ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ کئی بار بنانے کا اتفاق ہوا ہے، ایک بار سرجی نے مجھے لا کر دی تھی۔ میں نے سامان سے کافی کا ڈبہ نکال کر اس کے حوالے کیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے دروازہ بند کر کے کپڑے بدلے اور سونے کے لباس میں آ گیا۔ جب دروازے پر دستک ہوئی تو میں سمجھا میمن کافی لے آئی ہے۔ اتنی جلدی؟ میں نے کہتے ہوئے دروازہ کھولا تو ایک چادر پوش اندر آئی۔ کون ہو تم؟ میں نے بوکھلا کر کہا۔ چادر کے باوجود اس کی نسوانی نزاکتیں نمایاں تھی۔ میں، اس نے چہرے سے چادر ہٹا دی تھی۔ ایمن، میرے منہ سے نکلا، تم اس طرح کیوں آئی ہو؟ ہم تم سے بات کرنے آیا ہے، وہ مخصوص لہجے میں بولی۔ اس وقت آنا ضروری تھا؟ میں نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ کل رات سے میں نے تمہیں نہیں دیکھا۔ ہمارا گھر کا عورت باہر نہیں جاتا ہے، اس نے وضاحت کی اور پھر میرا ہاتھ تھام کر بولی۔
यूसुफ, तुम इधर से चला जाओ, अभी चला जाओ। मगर क्यों? सर जी ने कहा है मुझे कल जाने की इजाज़त मिल जाएगी। एमन ने ज़ोरों शोर से नफ़ी में सर हिलाया। नहीं मिलेगा, तुम इधर रुक लिया जाएगा। क्यों रोक लिया जाएगा? बस अब तुमको इजाज़त नहीं मिलेगा। जो इधर आता वो नहीं इधर से जाता। ऐसी कोई बात नहीं होगी। मैंने उसे तसल्ली दी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसने बेबसी से मुझे देखा। तुम नहीं जानता, तुम रोक को जानता। अब तुम इधर से नहीं जाता, कोई नहीं जाता। उसकी बात काबिले गौर थी। सरजी ने भी मुझे यही बताया था कि वो अपने मुजरमों को उम्र भर के लिए कैद कर लेते थे। क्या उन्हें खदशा था कि मैं यहाँ से जाकर किताब मुकद्दस का राज फाश कर दूंगा? मैंने अमन की तरफ देखा। क्या मुझे कैद कर लिया जाएगा? हमको नहीं पता, पर अब तुमको जाने का इजाज़त नहीं मिलेगा। अगर तुम नहीं माना तो तुमको इधर बंद कर दिया जाएगा। मैं अमन के खदशे को नहीं झुटला सकता था। वो जनाब सरमानी की बेटी थी और अंदरूने खाना राजों से वाकिफ थी। अगर मेमन ये खदशा जाहिर करती तो शायद मैं इसे इतनी तवज्जो न देता। मैं भी सोच रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मेमन का उड़ा रंग बताने लगा कि वो सबसे छुप कर आई थी। मैंने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया और बुलंद आवाज से पूछा, कौन है? सर, मैं काफिल आई हूँ। बाहर से मेमन की आवाज़ आई। 1 मिनट, मैं कपड़े बदल लूँ। मैंने जवाब दिया और इशारे से एमन को बाथरूम में जाने को कहा। एमन खामोशी से अंदर चली गई। कुछ देर बाद मैंने दरवाज़ा खोल दिया। मेमन अंदर आई। उसने काफ़ी के कप की मुख्तसर सी ट्रे मेज़ पर रखी। कप ऊपर से ढका था। इसके साथ एक मुख्तसर सी प्याली में करीम थी। चीनी के डिब्बों वाला बर्तन पहले ही मेज़ पर रखा था। मेमन ने मेरी तरफ देखा और किसी कदर हिचकिचाहट के साथ बोली, सर, क्या आपके कमरे में कोई था? मैंने किसी लड़की के बोलने की आवाज़ सुनी थी। मैं मुस्कुराया। लड़की तो अब भी बोल रही है। वो शर्माई। मेरा मतलब है जब मैं बाहर थी तब। तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैंने नरमी से समझाया। अब तुम जाओ, तुम्हें देर ना हो जाए। मैं गुसल खाना देख लूँ? वो गुसल खाने की तरह बड़ी, कोई चीज़ कम ना हो। मैं लपक कर उसका बाजू पकड़ लिया। इसकी ज़रूरत नहीं, अब तुम जाओ, थक गई होगी। चंद मिनट लगेंगे, उसने इसरार किया। मैंने कहा ना, अब तुम जा सकती हो। इस बार मेरा लहजा सख्त था। उसने चौंक कर मुझे देखा। जी सर। वह सर झुका कर चली गई। मेमन के जाते ही मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद किया और बाथरूम के पास जाकर आहिस्ता से हेमन को पुकारा। वो बाहर आ गई। ये लड़की क्या बोलता है? इसकी फिक्र न करो, मुझे ये बताओ, अगर मुझे रोकने का फैसला हो गया है तो मैं इस वादी से कैसे निकल सकूंगा? हम क्या बताए, तुम रात को चला जाओ। वो बोली, इधर से घोड़ा ले लो। वादी से बाहर जाने वाले रास्ते पर पैरा होता है। वो लोग मुझे नहीं जाने देंगे। अगर तुम नहीं गया तो बंद कर दिया जाएगा और इधर ही रहेगा। मैंने सर पर हाथ मारा। ये सारे चक्कर मेरे नसीब में क्यों हैं? अब तुम लोगों से सर फोड़ूं? काश मैं इस चक्कर में पड़ने के बजाय तुम्हें मकामी इंतजामिया के हवाले करके अपनी राह लेता, मगर जिम्मेदारी उठाने का भूत सवार था ना। अब भुगतो मियां यूसुफ, मैंने खुद से कहा। तुम भाग जाओ, उसने फिर इल्तिजा की। कैसे? मेरे पास ना घोड़ा है और ना मेरा असलिया है, वो भी ले लिया गया है। घोड़ा लाया है, तुम इस पर जाओ। बगैर हथियार के मैं यहाँ से नहीं निकल सकता। रास्ते पर मुसल्ला पहरेदार हैं, इनसे निमटने के लिए हथियार चाहिए। असला किधर से लाए? घोड़ा किधर है? बार। उसने हाथ उठाकर बताया। मेरे साथ आओ। मैंने उसका बाजू थामा। तुम किस रास्ते से अंदर आई थी? वो मेरे साथ निकली। कमरे के सामने एक छोटी सी गैलरी थी। इसका दरवाज़ा बाहर खुलता था। अगली समत में छोटा सा सहन था, जिसके एक तरफ अस्तबल था। इसके साथ पत्थरों की बनी 4 फुट ऊंची दीवार थी। इमन ने इसे बआसानी फलांग लिया। चादर तले उसने चुस्त पाजामा और ठीली सी कमीज पहन रखी थी। इसका घोड़ा जरा दूर एक दरख्त तले खड़ा था। इमन को देखकर वो हल्के से हिनहिनाया। इमन ने इसके मुंह पर हाथ फेरा और तभी जुबान में कुछ कहने लगी। जाहिर है इसका मुखातिब घोड़ा था, वरना वो उर्दू बोलती। कुछ देर तक घोड़े को हदायत देकर उसने मुझसे कहा, अब ये तुम्हारे साथ जाएगा, हमने इसे बता दिया है। इमन, अब तुम जाओ। क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ाऊं? हम चला जाएगा, उसने किसी कदर तजब्जुब के साथ कहा। यूसुफ, तुम को याद करेगा? क्यों नहीं, मैं तुम्हें भूल सकता हूं। मैंने घोड़े का जायजा लेते हुए रवादारी में कहा। तुम को अच्छा लगता है। वो अचानक मेरे गले का हार बन के। बहुत अच्छा। मैं इस अचानक हमले पर दंग रह गया था। इसके जज्बात, इसका लहजा और मुर्तइश बदन बता रहा था कि मैं इसे किस लिहाज से अच्छा लग रहा था। वो मेरी मोहसना बन रही थी, इसलिए उसके जज्बे की पजीराई जरूरी थी। मैंने उसे बाजू में उठाते हुए खुद से करीब कर लिया था और जब उसे दोबारा जमीन पर खड़ा किया तो उसकी सांस भी बेकाबू हो रही थी। वो फिर मुझसे लिपट गई। एमन, मुझे दूर जाना है, मैंने उसकी पुष्ट सहलाते हुए नरमी से कहा। हम तुमको हमेशा याद रखेगा, उसने भराई हुई आवाज में कहा और भागती हुई तारीकी में गायब हो गई। मैं उसे देखता रह गया था।
हालात मेरे लिए कितनी तेजी से बदल रहे थे। महज घंटा भर पहले मैं आराम से सोने की फिक्र कर रहा था, अब मुझे फरार होना था। हेमंत ने अपने लोगों के अजाइम से बर वक्त खबरदार करके मुझ पर एहसान किया था। मैंने घोड़े को थपकी दी, दोस्त मैं अभी वापस आता हूँ, तुम फिक्र न करना और चुप रहना। घोड़े ने यूं सर हिलाया जैसे मेरी बात समझ गया हो। मैं वापस मेहमान खाने में आया। मुझे अपने सामान की भी फिक्र थी। सबसे पहले मैंने अपने बैग में साइमन का मेडिकल बैग रखा। असलिहा ये लोग ले जा चुके थे, लेकिन एक चाकू था मेरे पास। वादी से बाहर जाने वाले रास्ते पर 2 अफराद का मुस्तकिल पहरा रहता था और गश्ती दस्ता वादी के बाहर भी होता था। मुझे इन दोनों से बचना था। उनके पहरेदारों पर मुझे उम्मीद थी कि आसानी से काबू पा लूंगा। ये मकामी लोग थे, इनके बारे में मुझे सरजी ने बता दिया था। असल मसला वादी के बाहर वाले गश्ती दस्ते का था। इसमें वादी में बसने वाले रेड आर्मी के तरबियत याफ्ता अफराद शामिल होते थे और इन पर काबू पाना आसान नहीं था, खासतौर से इस सूरत में जबकि वो मुसल्ला थे और मेरे पास कुछ नहीं था। खैर ये बात के मसाइल थे। पहले मुझे इस जगह से निकलना था। मैंने बैग में तमाम जरूरी चीजें रखकर इसके जिप बंद की थी। क्या कब से मेमन की आवाज आई, सर आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? मैं चौंक कर मुड़ा। कहीं नहीं, मैं बस अपना सामान देख रहा था। तुम गई नहीं अब तक? मैं बर्तन लेने आई थी। उसकी निगाहों में शक था। ओह ले जाओ, अब मैं भी सोऊंगा। आपने कपड़े बदल लिए हैं? क्या आप बाहर जा रहे हैं? मैंने सिर्फ कपड़े बदल लिए थे, बल्कि सर्दी से बचने के लिए जैकेट और ओनी टोपी भी पहन ली थी। ओह मैं जरा चहलकदमी के इरादे से बाहर जा रहा था। खाना ज्यादा खा लिए इसलिए करानी हो रही है। तुम ये बर्तन ले जाओ, मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। वो मुझे गौर से देखती मेज की तरफ बढ़ी और जैसे ही मेरे पास से गुजरी मैंने लपक कर उसकी गर्दन पकड़ ली ताकि वो आवाज ना निकाल सके। मेरा ख्याल था कि वो एक आम सी लड़की है, आसानी बेहोश हो जाएगी, मगर उसने घबराए बगैर कोहनी से मेरी पसली परवार किया। ये प्रोफेशनल वार था। एक लम्हे को मेरी सांस रुकी। मैंने सिर्फ इस ख्याल से गिरफ्त ढीली नहीं की कि इसकी एक चीख ना जाने कितने लोगों को खींच लाती। इसके दोबारा वार करने से पहले मैंने दूसरे हाथ से उसे जकड़ लिया और गर्दन पर अपनी गिरफ्त सख्त कर दी। वो तड़पने और पांव चलाने लगी, मगर रफ्ता रफ्ता उसकी जिद्दोजहद मान पड़ती चली गई, हत्ता कि उसने हाथ पांव छोड़ दिए। मैंने उसे बिस्तर पर लिटाया और चादर से पट्टियां फाड़ कर उसके हाथ पैर बांध दिए। फिर इस चादर से उसका मुंह भी बंद कर दिया था कि वो जल्दी होश में आ जाए तो किसी को मेरे फरार के बारे में न बता सके। आखिर में उसे चादर उड़ाकर मैं बैग संभाले बाहर निकला। कमरे का दरवाजा मैंने भीड़ दिया था। मुझे मेहमान खाने से बाहर आने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। घोड़ा जैसे वफाचार बीवी की तरह मेरी राह तक रहा था। कम से कम इसके पुरमसरत तासरात से मुझे ऐसा ही लगा था। दोस्त कोशिश करना आवाज पैदा ना हो, मैंने उस पर बैग लादते हुए कहा और फिर उसे पैदल चलाता हुआ आबादी से दूर ले जाने लगा। आज चांदनी ज्यादा आबोताब से फैली थी और दूर तक साफ नजर आ रहा था, इसलिए मेरी कोशिश थी कि दरख्तों के साए और झाड़ियों की ओर से गुजरूं। रफ्ता रफ्ता आबादी से दूर होने के साथ मैंने रफ्तार में इजाफा कर लिया था। जैसे ही मैं बाहर निकला घोड़े पर सवार होकर इसे एड़ी लगा दी। घोड़ा चांदार और रास्तों से वाकिफ लगता था, बगैर मेरी कोशिश के वो खुद कौन नुमा पहाड़ी की तरफ जाने लगा। ये रास्ता मशरकी ढलान से गुजरता था और इस तरफ जंगलात थे, इसलिए वादी से मेरे देख लिए जाने के इम्कानात कम थे। मैंने स्याह रंग की पैंट के साथ नीले रंग की जैकेट पहन रखी थी। घोड़ा भी गहरे भूरे रंग का था, इसलिए खास तौर से नजर आना मुहाल था। सन्नाटे में घोड़े की टापें गूंज रही थी, मगर ज्यादा दूर तक नहीं जा रही थी। जमीन सख्त थी मगर पथरीली नहीं थी। मशरकी ढलान से उतरते हुए मुझे खाई पर बना कुदरती पुल नजर आने लगा, लेकिन अभी चेक पोस्ट नजर से ओझल थी। इस तरफ चंद ऊंचे टीले थे और ये अच्छी बात थी, वरना मेरे पहरेदार मुझे दूर से देख कर चौकन्ना हो जाते। अब मैं अचानक इनके स्तर पर पहुंचता तो उन्हें संभलने का मौका नहीं मिलता। मैंने चेक पोस्ट के नजदीक निकलने के लिए बाएं तरफ के बजाय दाएं तरफ का रास्ता इख्तियार किया, जो वादी के वस्त से चेक पोस्ट की तरफ जाता था। दो टीलों के दरमियान से निकलते ही चेक पोस्ट 100 फुट के फासले पर थी। सर जी मुझे इस जगह से लाया था। मेरी तवक्का के इन मुताबिक चेक पोस्ट के पहरेदारों ने घोड़े की टापें सुन ली थी और वो दोनों इस तरह रुक करके खड़े थे। मैंने रफ्तार कम नहीं की और इनके नजदीक पहुंचते ही नीचे कूद गया। मैंने जैकेट के कॉलर खड़े कर लिए थे, इसलिए मेरे खदोखाल नजर नहीं आ रहे थे, मगर इतने नजदीक से देखकर पहचान लेना मुश्किल नहीं था। मुझे देखते ही आगे वाले पहरेदार ने अपनी गन सीधी करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले झपट कर मैंने उसे अपनी तरफ खींचा और घुमाकर चक्कर देकर इसे इसके साथी पर दे मारा। जब तक वो संभल थे मैंने एक राइफल उठाकर तान ली और अंग्रेजी में कहा, बस हरकत मत करना वरना मैं रहम नहीं करूंगा। दोनों हाथ सरों पर रखकर घुटनों के बल खड़े हो जाओ। इनमें से एक अंग्रेजी जानता था। उसने बरनामी जुबान में मेरा हुक्म अपने साथी को सुनाया और दोनों ने हुक्म की तामील की। अंग्रेजी जानने वाले ने कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तुम हमारे मेहमान हो,
लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मुझे हरगिज़ गलत फहमी नहीं हुई है। तुम लोग मुझे हमेशा के लिए मेहमान बना कर रखना चाहते थे। दूसरा शख्स घोड़े को घूर रहा था। फिर उसने अंग्रेजी जानने वाले से बरनामी में कुछ कहा। वो चौंका। तुमने ये घोड़ा जनाब सरमानी के अस्तबल से चुराया? इस पर दरगाह का निशान है। मुझे नहीं मालूम, मुझे रास्ते में ये आवारा फिरता मिला था। मैंने साफ झूठ बोला। मैं इन्हें एमन के बारे में नहीं बता सकता था। झूठ मत बोलो। तुमने दरगाह का घोड़ा चुरा कर अपनी तबाही को आवाज़ दी है। तुम इसकी फिक्र न करो और अब बूंदे मुंह लेट जाओ, मैंने हुक्म दिया। इन्होंने बादल नुखास्ता तामील की। मैंने अंग्रेजी न जानने वाले बरनामी के सर पर राइफल का दस्ता मारा और वो बेसुध हो गया। दूसरा चिल्लाया, ये क्या किया है तुमने? खामोश रहो, मैं गुर्राया, वरना यही हशर तुम्हारा भी होगा। तुम फरार नहीं हो सकोगे। अब हिफाजती पहरा सख्त कर दिया गया है। तुम फरार हो भी गए तो ज्यादा दूर नहीं जा सकोगे। तुम इस वादी से नहीं निकल सकते। बको मत। मुझे ये बताओ कि वादी से बाहर कितने लोग हैं तुम्हारे गश्ती दस्ते में? वो 30 हैं, लेकिन कहाँ हैं मुझे नहीं मालूम। इनमें सरजी भी है। उसने इनकार किया, वो आज छुट्टी पर है, उसकी जगह बोरिस है। मैंने सोचकर पूछा, अगर इस गश्ती दस्ते को फौरी तौर पर वादी में बुलाना हो तो तुम लोग क्या तरीका इख्तियार करते हो? वो हिचकिचाया, लेकिन जब मैंने उसके सर पर राइफल के नाल का दबाव डाला तो उसने बता दिया, जब हमने कोई हंगामी पैगाम देना हो तो इस कौन नुमा पहाड़ी के ऊपर आग जला देते हैं। ओके, तुम चलो और आग जलाओ। ये याद रखना, मुझे तुम्हारी मदद की खास जरूरत नहीं है, इसलिए कोई अहम काना हरकत मत करना। उसने सर हिलाया। मैंने उठने का हुक्म दिया। वो आगे था और मैं अकब में। कुदरती पुल अबूर कर रहा था। इस मकाम पर घोड़े पर सवारी करना बड़े दिलगुर्दे का काम था। फूंक फूंक कर कदम रखते हमने ये पुल अबूर किया। पहरेदार दाएं तरफ मुड़ गया। कौन नुमा पहाड़ी की तरफ इस जगह से रास्ता जाता था। सामने की तरफ से वो नाकाबले चढ़ाई लगती थी। मैंने घोड़ा एक दरख्त के साथ बांधा। इस तरफ मुख्तसर दरख्त और झाड़ियां कसरत से थी। खासतौर से उल्टी कौन नुमा पहाड़ी का निचला हिस्सा झाड़ियों से ढका हुआ था। ऊपर जाने का रास्ता इनके दरमियान में था। अगर वो मेरे साथ न होता तो इन झाड़ियों में छुपा ऊपर जाने वाला रास्ता कभी तलाश नहीं कर सकता था। महज 15 मिनट में हम उल्टी कौन नुमा पहाड़ी के उस सामने वाले हिस्से में वाक़ इस गार में थे, जिसके सामने वाले हिस्से में लकड़ी चलाने के लिए एक बाकायदा चबूतरा बना था। पहरेदार ने, जिसका नाम एमएक्स था, इस चबूतरे पर सलीके से लकड़ियां चुनी और फिर इन पर तेल छिड़क कर आग लगा दी। खुश्क लकड़ियों ने तेजी से आग पकड़ ली। अब वो लोग जहां भी होंगे तेजी से इस तरफ आएंगे। चलो, पुल के दूसरी तरफ चोटी तक चलना है। रुको मत, जल्दी करो। हम तकरीबन भागते हुए उस तरफ आए थे। दूसरा पहरेदार अभी तक बेहोश पड़ा था। मैंने एमएक्स से कहा, इसे अंदर चोटी में ले चलो और इसके हाथ पैर बांध दो। अंदर रस्सी मौजूद थी। मैंने अपनी निगरानी में बेहोश पहरेदार के हाथ पैर बंधवाए, फिर इसकी राइफल खाली की और इसे थमा कर कहा, इसे लेकर बाहर खड़े हो जाओ ताकि आने वाले पहरेदारों को शक न हो। मैं तुम्हारे हुक्म की तामील करूंगा, लेकिन अब भी यही कहूंगा कि जगह से फरार मुश्किल है। मैंने सर हिलाया। तुम देखते जाओ मैं इस मुश्किल को किस तरह आसान करता हूं। अब तुम बाहर जाकर खड़े हो जाओ। फिर खबरदार कर रहा हूं, इन्हें कोई इशारा मत देना, वरना सबसे पहले तुम मारे जाओगे। मुझे धमकियां मत दो, उसने मुंह बनाकर कहा और बाहर चला गया। मैं पत्थर और कच्ची मिट्टी से बनी इस चौकी में मोर्चा बनाकर बैठ गया। कुछ देर बाद पहरेदार ने मुस्तरिब होकर जनूब की तरफ देखा। इसके साथ ही आ रहे थे। मैंने एहतियात से झांका। 3 अफराद अपने घोड़ों की लगामें तामे पुल अबूर कर रहे थे। कुछ ही देर में वो इस तरफ थे। इनमें से एक आगे था और उसने बरनामी जुबान में पहरेदार से कुछ कहा। इससे पहले वो जवाब देता, मैंने राइफल की नाल बाहर की और बुलंद आवाज से बोला, इनसे कहो ये मेरे निशाने पर हैं, अपने हथियार फेंक दे वरना अपनी मौत के खुद जिम्मेदार होंगे। उसने बरनामी में इन लोगों से कुछ कहा जो मेरी समझ में नहीं आया, मगर इन लोगों के चेहरे फक हो गए थे। इन्होंने राइफल की नाल देख ली थी, इसलिए बादल नखास्ता उन्होंने अपनी राइफलें उतार फेंकी। मैंने अगला हुक्म दिया, चारों जमीन पर लेट जाओ, हाथ सर पर हों। इन्होंने इस हुक्म की तामील भी की। इसके बाद का काम आसान था। मैं रस्सी लेकर निकला और इसके टुकड़े करके अंग्रेजी दांव पहरेदार से कहा, इन तीनों के हाथ पैर बांधो। उसने ये काम भी कर दिया। आखिर में उसके हाथ पैर भी बांध दिए और इन सबको चोटी में मुंतकिल कर दिया। इनका सारा असलहा मैंने खाई में फेंक दिया था। अपने पास सिर्फ एक राइफल और इसके फाजिल मैगजीन रखे थे। मेरा रास्ता साफ था। सुबह तक इनकी दरियाफ्त मुहाल थी। इस वक्त तक मैं वादी से खासे फासले पर जा चुका था। मैंने पुल पर कदम रखा और चंद गज आगे गया था कि अकब से सरजी की आवाज आई, यूसुफ रुक जाओ। एक कदम आगे बढ़ाया तो खाई में होके। मैंने मुड़कर उस पर राइफल तान ली। सरजी वापस जाओ, तुम्हारे साथ अच्छे लम्हात गुजरे हैं, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। सरजी बाज़ाहिर निहत्था था, मगर उसने हाथ ऊपर किया तो उसमें एक आला था। यूसुफ, ये रिमोट है इन बम्बों का जो तुम्हारे पैरों तले हैं। मैंने छुप कर देखा। तारीख अला मेरा मुंतजिर था।
میں نے اس تاریخ خلا کی طرف دیکھا اور پھر سرجی کی طرف۔ اس کے ہاتھ میں پل پر نصب بموں کا ریموٹ کنٹرول تھا۔ اگر میں پل پر قدم رکھتا تو اس کی انگلی کی معمولی سی جنبش میرے چیتھڑے اڑا دیتی یا میں سینکڑوں فٹ گہری کھائی میں لڑک جاتا۔ دونوں صورتوں میں موت میرا مقدر تھی۔ میں نے سرجی سے کہا، دوست مجھ پر بھروسہ کرو، مجھے جانے دو، اس وادی کا کوئی راز میرے سینے سے باہر نہیں جائے گا۔